Good morning, students. Today we will do the questions based on insertion of GMs between two given numbers. I am doing question number example 1 of page number 20.49. I am reading the question. Insert 5 geometric mean between 576 and 9. आपको 576 to 9 के बीच में 5 geometric means insert करना है. Let G1, G2, G3, G4 and G5 be the 5 geometric means that we can insert between 576 and 9. That means A equal to 576, B equal to 9. By the property of GM between two numbers A and B, the common ratio can be found out using the formula R equal to B by A whole power 1 by n plus 1. कॉमन रेशियो निकालने का फॉर्मूला, अगर आप दो नंबर ए और बी के बीच में ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करेंगे तो कॉमन रेशियो निकालने का फॉर्मूला है b बाई ए होल पावर 1 by n plus 1. n means 5, b is 9 and a is 576. That means 9 by 576 whole power 1 by 6. That is 1 by 64 whole power 1 by 6. That is 1 by 2 raised to power 6 whole power 1 by 6. That is equal to 1 by 2. मतलब आपको R के फॉर्मूला से R इक्वल टू बी बाई ए होल पावर 1 बाई n प्लस 1 में से आपको R का वैल्यू मिला है 1 बाई 2. नाउ G1 मीन्स इस अगर आप 5 ज्योमेट्रिक में इंसर्ट करते हैं तो फर्स्ट वो जो सीक्वेंस बनता है A, G1, G2, G3, G4, G5, B फॉर्म्स ए GP. तो G1 उस GP का फर्स्ट टर्म होता है. अगर आपने इसके बीच में 5 GMs इंसर्ट किया तो आप लिख सकते हैं therefore 5 G1, G2, G3, G4, G5, 576 form a GP बन जाता है. That means G1 is the second term, that is AR. 576 in 1 by 2, that is 288. G2 is third term, AR square. Okay, first, second, third, fourth, fifth, sixth. 576 in 1 by 2 square is 144. G3 is AR cube. 576 in 1 by 8 equal to 72. G4 equal to AR is power 4, that is 1 by 576 in 1 by 16, that is 36. Now last term is G5. G5 is equal to, G5 means कौन सा टर्म आ जाएगा, सिक्स्थ टर्म आ जाएगा, that is AR raised to power 5, AR raised to the power 5, that is 576 into 1 by 2 raised to the power 5, that is 1 by 32, that is 18. Therefore 5 geometric means between the given numbers are 288, 144, 72, 36, 80. In this way you can insert any number of geometric means between the given numbers. इसमें ये फॉर्मूला ध्यान रखना है R equal to B by A whole power 1 by n plus 1. Next question is, this question is very important. This question आपको NCERT में भी मिलेगा. Example 2 इस तरह का क्वेश्चन हमने AP में भी AM में भी कर रखा है 20.50. And reading the question, find the value of n so that A raised to the power n plus 1 plus B raised to the power n plus 1. आपको n का वैल्यू निकालना है. Divided by A raised to the power n plus B raised to the power n may be the geometric mean between A and B. ये आपको निकालना है. तो what is the geometric mean between A and B? Geometric mean between A and B can be written as root AB. और arithmetic में तो A plus B by 2. That means now as per the given condition, A raised to the power n plus 1 plus B raised to the power n plus 1 upon A raised to the power n plus B raised to the power n is equal to root AB. If you convert into exponential form, it becomes A raised to the power 1 by 2 into B raised to the power 1 by 2. That implies A raised to the power n by plus 1 plus B raised to the power n plus 1. समझ में आ रहा है? पहले इसको उसका ज्योमेट्रिक मीन के फॉर्मूला से इक्वेट किया, उसको पावर में चेंज कर लिया. दैट इंप्लाइज A raised to power n plus 1 by 2, उसको हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करना है. n plus 1 by 2 B raised to power n प्लस नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, B raised to power देखिए A raised to power n into A raised to power 1 by 2, that is A raised to n plus 1 by 2. This is B raised to power 1 by 2. Sorry. Next term is A raised to the power 1 by 2. अगले टर्म में A raised to the power 1 by 2 अकेला रहेगा, B raised to the power n plus 1 by 2 आ गया.
अब सेम टर्म्स को एक साइड में शिफ्ट कर लेते हैं, a रेज़ टू पावर n प्लस 1 माइनस a रेज़ टू पावर n प्लस 1/2, ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, इक्वल टू a रेज़ टू पावर 1/2 b रेज़ टू पावर n प्लस 1/2 माइनस b रेज़ टू पावर n प्लस 1। हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसे इक्वेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसका बेस सेम हो ताकि वी कैन इक्वेट एक्सपोनेंट्स। इन दोनों टर्म में से n प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, n प्लस 1/2 प्लस 1/2, तो n प्लस 1/2 कॉमन लेंगे, तो ये ध्यान से समझना, n प्लस 1/2 ये आएगा a रेज़ टू पावर 1/2 माइनस b रेज़ टू पावर 1/2। देखिए मल्टीप्लाई करें, देखिए n प्लस 1 आ गया, n प्लस 1/2 b बाई 1/2, यहाँ कौन सा कॉमन लेंगे, b रेज़ टू पावर n प्लस 1/2, again a raised to power 1/2 minus b raised to power 1/2 is coming, so that these two terms are getting cancelled, implies a raised to power n plus 1/2 is equal to b raised to power n plus 1/2. That implies a raised to power n plus 1/2 by b raised to power n plus 1/2 is equal to 1. That implies a by b रेस्ट पर, ये हमने a में भी क्या वैसे ही करना है, सॉरी दिस इज 1 नॉट 0, इक्वल टू 1। दैट इम्प्लाइज, टेक द चॉक, दैट इम्प्लाइज becomes, this is any exponent with power 0 is 1, so that we have converted an equation with base equal, so that you can equate exponents, equal to 0 implies n equal to minus 1/2। तो क्या किया, पहले जो गिवन है उसको रूट ए बी के साथ इक्वेट किया, फिर a पावर 1/2 b पावर 1/2 लिया, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिया, उसके बाद ये स्टेप दोनों में से ये कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद 1 आया तो रेज़ टू पावर 0 करके इक्वेट किया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन फाइंड इन एम एज वेल एज इन GM। नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम डूइंग इज example 3, each and every question is important. Example 3, find two numbers whose geometric mean is 34, geometric mean is 34 and arithmetic mean is 34 and geometric mean is 60। आपको दो नंबर निकालना है, ये कंडीशन दे रखा है। let the two numbers be a and b, हमने दोनों नंबर्स को a और b अज्यूम कर लिया। देन गिवन दैट a प्लस b बाई 2 इज इक्वल टू 34 implies a प्लस b इज इक्वल टू 68, फर्स्ट इक्वेशन। नाउ रूट ab इज इक्वल टू gm is given as 16, that implies ab by square root you get 256, this is first equation। now for now अब क्या करेंगे, a माइनस b में भी इक्वेशन बनाएंगे, दोनों को एलिमिनेट करेंगे। a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये छोटी क्लास में है, सारे वैल्यू आपके पास है। a प्लस बी 68 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 256, दैट इम्प्लाइज if you solve it you get it as 3600, that implies a minus b is equal to 60, that is equation number 2। ये स्टेप ध्यान रखना है, a प्लस बी में इक्वेशन मिला है, नेक्स्ट इक्वेशन मिलने के लिए ये फॉर्मूला लगाना है। तो दोनों इक्वेशन को एलिमिनेट करेंगे, 1 प्लस 2 गिव्स 2a इक्वल टू 128 implies a इक्वल टू 64, a का वैल्यू आपको मिल गया 64। नाउ b का वैल्यू निकालने के लिए 1 में पुट कर लीजिए, 1 गिव्स 64 प्लस b इज इक्वल टू 68 implies b is equal to 4। in this way you can find the values of a and b। this is the next question। now next question is this is very important, I am not doing this question by RD method, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, NCERT में मिलेंगे आपको मिसलेनियस सक्सेस में। मैं RD के मेथड से नहीं करूंगी, मैं अलग मेथड से करूंगी। क्वेश्चन इज example 4 of page number 20.51। I will read the question। if AM and GM of two numbers are in the ratio AM is to GM is given as M is to N, you are asked to prove that the numbers are in the ratio m plus root m square minus n square is to m minus root m square minus n square। That means let the given numbers be, let the numbers be a and b। मैं आरडी मेथड से नहीं कर रही हूँ, ध्यान से समझना। Now am
is equal to a plus b by 2 and gm is equal to root ab. Now am by gm is 2 means m by n that you are given implies a plus b by 2 root ab is equal to m by n. Now मैंने आपको एक चैप्टर में कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड बताया था. If a by b is equal to c by d, that implies a plus b upon a minus b is equal to c plus d upon c minus b. ये लगाएंगे इसको कंपोनेंटो c and d कंपोनेंटो and डिविडेंडो बोलते हैं. Then by applying component of dividendo, by applying c and d, you will get a plus b plus 2 root ab upon पहले ऊपर प्लस a plus b minus 2 root ab is equal to नीचे माइनस m plus n upon m minus n. ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में अच्छी तरह समझ में आ जाएगा. ये इसमें कंपोनेंट में एक बार ऊपर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को प्लस करते हैं और एक बार माइनस करते हैं. अब देखिए a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी रूट ए होल स्क्वायर प्लस रूट बी होल स्क्वायर प्लस 2 ए प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज रूट ए प्लस रूट बी होल स्क्वायर. जगह की कमी से मैं सारे स्टेप नहीं बता पाऊंगी. अपॉन रूट ए माइनस रूट बी ए माइनस बी होल स्क्वायर लगाएंगे दैट इज m प्लस n अपॉन m माइनस n. बाय टेकिंग हमको क्या निकालना है? a निकालना है. बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड यू गेट रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी इज इक्वल टू अंडर रूट m प्लस n अपॉन अंडर रूट m माइनस n. वापस देखिए पहले हमने नंबर्स को अज्यूम किया, फिर एम बाई जी एम का रेशियो निकाला, कंपोनेंट और डिविडेंड निकाला, उसके बाद ए प्लस बी और ए माइनस बी होल स्क्वायर लगा दिया, स्क्वायर रूट निकाल दिया. बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए बार बार चेंज करना पड़ेगा. नाउ नेक्स्ट क्या आएगा? अगेन बाय अप्लाइंग सीएमडी. हमको बाय अप्लाइंग सीएमडी आपको क्या निकालना है? आपको ए और बी निकालना है. बाय अप्लाइंग सी एंड डी निकालेंगे. वापस क्या आएगा? ये इम्प्लाइज रूट ए एक बार ऊपर न्यूमरेटर प्लस रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट ए माइनस रूट बी अपॉन रूट ए प्लस रूट बी माइनस रूट ए प्लस रूट बी. नीचे माइनस करेंगे ऊपर प्लस करेंगे दैट इज रूट एम प्लस एन प्लस रूट एम माइनस एन होल अपॉन रूट एम प्लस एन minus root m minus n. That means these are getting cancelled. Again this getting cancelled. You will get 2 root a upon 2 root b is equal to root m plus n plus root m minus n. थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन है, इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करना. रूट m plus n माइनस रूट m minus n. ये मैं आगे का मेथड से नहीं बता रही हूँ. That implies you are getting cancelled. That is this is equal to root a by root b is equal to this one. लेकिन आपको किसका वैल्यू निकालना है? a और b का वैल्यू निकालना है. दैट इज इसको स्क्वायर करना है बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. यू विल गेट a by b is equal to a plus b होल स्क्वायर लगा दीजिए, रूट m प्लस n का होल स्क्वायर m प्लस n, रूट m माइनस n का होल स्क्वायर m माइनस n प्लस 2 रूट m प्लस n जो m माइनस n m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर. यहाँ वापस m माइनस बी होल स्क्वायर m प्लस n प्लस m माइनस n माइनस आएगा QAB का टर्म में रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर. दैट मीन्स n getting cancelled. This again n getting cancelled. You will get, देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है, बार बार बोर्ड को साफ करना पड़ रहा है. That implies a by b is equal to 2m plus 2 root m square minus n square upon 2m minus 2 root m square minus n square. You are getting cancelled. Implies a by b equal to m plus root m square minus n square upon m minus root m square minus n square. But you are asked to find it is in the ratio. Is to में ratio means you have to write in is to. That implies a is to b is equal to m plus root m square minus n square is to m minus root m square minus n square. In this way you can find this question. That means सबसे पहले हमने क्या किया? am और gm का फॉर्मूला लगा करके m by gm में m by n लगा दिया. उसके बाद वो a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर लगा दिया. फिर उसके बाद सी एन डी लगा दिया. उसके बाद स्क्वायर रूट ले लिया. फिर वापस सी एन डी लगा लिया. फिर स्क्वायर कर लिया. आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस क्वेश्चन.
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बार बार करना प्रैक्टिस में, तो मैं रिपीटेडली बोल रही हूँ, आपको दिक्कत आ जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड टू एग्जाम्पल 5 ऑफ पेज नंबर 20.51. How you can find this? Find two positive integers whose difference is 12 and m exceeds gm by 2. Two positive integers निकालना है. Let the two positive integers be a and b. Given that a minus b with a greater than b लिख दो ताकि बड़ा पहले लिखने के लिए. a minus b इक्वल टू डिफरेंस कितना दे रखा है आपको? a minus b इक्वल टू 12. फर्स्ट क्वेश्चन, am exceeds gm by 2. That implies am minus gm is equal to 2. That implies a plus b by 2 minus root ab equal to 2. That implies a plus b minus 2 root ab is equal to 4. ये रूट ए स्क्वायर प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्म है, तो आप लिख सकते हैं रूट ए प्लस रूट बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 implies रूट ए प्लस रूट बी इज इक्वल टू 2. प्लस और माइनस टू ले सकते हैं, लेकिन माइनस 2 नहीं लेना, आपको पॉजिटिव रखा है. आप दिस इज इक्वेशन नंबर 2. फर्स्ट को देखिए, फर्स्ट कैन बी रिटन एज रूट ए स्क्वायर माइनस रूट बी स्क्वायर इज इक्वल टू 12. That means using the identity a plus b a minus b, root a plus b into root a minus root b, root a plus root b into root a minus root b equal to 12. क्यों कर रहे हैं इसको? क्योंकि आपके पास रूट ए प्लस रूट बी का वैल्यू है. बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ रूट ए प्लस रूट बी इक्वल टू 2 in 1 इक्वल टू 2 1 मिनट, रूट ए प्लस रूट बी का वैल्यू 2 इसमें से पुट करेंगे तो आपको मिलेगा रूट ए प्लस रूट बी इज 2 into root a minus root b is equal to 12. That implies root a minus root b equal to 6. That is equation number 3. Equation number 2 क्या मिला है? root a plus root b is equal to 2. Now by eliminating these two, what you will get? अब इसको एलिमिनेट कर लीजिए. आप इसको एलिमिनेट करेंगे तो आपको मिलेगा 2 root a is equal to 8. implies root a equal to 4 implies a equal to 16. तो फर्स्ट नंबर आपको मिल गया 16. नाउ सेकेंड मिलने के लिए क्या करेंगे? इसमें पुट कर लीजिए रूट ए 4 माइनस रूट बी इज इक्वल टू 6 implies रूट बी इज इक्वल टू -2 implies b equal to 4. That means the two given numbers are a equal to 16 and b is equal to 4. This is also very important. नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अभी जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है. ये आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज से पहले सॉल्व एग्जाम्पल मिलेंगे और उसका मेथड थोड़ा सा टिपिकल है. ये जो मेथड बोलने में जा रही हूँ उसको यूज करना. एग्जाम्पल 6 ऑफ द सेम पेज नंबर 20.51. आई एम राइटिंग द क्वेश्चन, रीडिंग द क्वेश्चन. इफ ABC are in GP, and the equations ax square plus bx plus c equal to 0 and dx square plus 2ex plus f equal to 0 has common root. इन दोनों को कॉमन रूट दे रखा है, कॉमन रूट. देन प्रूव दैट d by a, e by b, f by c आर इन AP. ये आपको प्रूफ करना है. ये प्रूफ करना मतलब क्या हो गया? 2b इक्वल टू a प्लस सी. इफ ABC आर इन AP देन 2b इक्वल टू a प्लस सी होता है. दैट इज 2 इंटू e बाई b इक्वल टू d बाई a प्लस f बाई c प्रूफ करना है. नाउ स्टार्ट कर लेते हैं. फर्स्ट कंडीशन क्या है? आपको दे रखा है ABC आर इन GP. दैट मीन्स b स्क्वायर इक्वल टू AC implies b इक्वल टू रूट AC. This is equation number 1 and this is equation number 2. Now 1 gives ax square plus 2 root acx plus c equal to 0. This can be written as root ax whole square plus, I am showing each and every step, root acx plus root c whole square is equal to 0. This is of the form a plus b whole square. Root ax plus root c whole square equal to 0 implies
root ax plus root c equal to 0 implies x is equal to minus root c by root a. ये आपको मिला है. If you want this, you can write this is minus of root a by root b is root a by b. ये मिला है. अब नेक्स्ट कंडीशन क्या दे रखा है आपको? नेक्स्ट कंडीशन दे रखा है इन दोनों का रूट्स इक्वल है, तो इसका रूट माइनस रूट सी बाई ए, तो इसका भी रूट वो सेम रहेगा. तो आप कंडीशन क्या लिखेंगे? गिवन दैट x इक्वल टू माइनस रूट सी बाई ए is a solution of solution of dx square plus 2ex plus f equal to 0. That means x की जगह पर किस वैल्यू से रिप्लेस करेंगे आप? x के वैल्यू को माइनस रूट सी बाई ए से करेंगे. इम्प्लाइज c इंटू डी इंटू स्क्वायरिंग c बाई ए हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायरिंग करते वक्त साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस 2e इंटू रूट सी बाई ए प्लस f is equal to 0. Now dividing this equation by c, dividing by c, पूरे इक्वेशन को c से डिवाइड करेंगे. d by a, हमको d by a चाहिए, चलो इसे एलिमिनेट कर रहा है. 2e by एक रूट c और c कटेगा तो 2 रूट ए सी प्लस f by c इज इक्वल टू 0. देखिए एक रूट ए ऑलरेडी था, c और रूट c कटेगा तो रूट c बचेगा. एंड रूट ए सी को क्या लिख सकते हैं आप? b. दैट मीन्स d by a minus 2e by b, बिकॉज यू आर गिवन द ए बी सी आर एंड जीपी. आपको क्या कंडीशन दे रखा है? ए बी सी आर जीपी. दैट मीन्स ए बी सी आर जीपी मीन्स बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होता है. दैट मीन्स b इक्वल टू रूट ए सी. 2e by b plus f by c is equal to 0. That implies 2e by b equal to d by a plus f by c. That means twice the middle term equal to first term plus last term, implies d by a, e by b, f by c are in AP. ये क्वेश्चन 6 मार्क का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आपको सबसे पहले ए बी सी डी पी दे रखा है, उसमें से आपने वो कंडीशन निकाला, उसके बाद आपने वो रूट निकाला. फर्स्ट इक्वेशन में से x इक्वल टू माइनस रूट सी बाई ए निकाला, सेकंड में डाला, उसके बाद पूरी इक्वेशन को इससे डिवाइड किया. ये स्टेप आपको याद करना है. आई होप दैट यू आर फॉलोइंग दिस क्वेश्चन ऑल्सो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जाम्पल 7. Example 7 is, if let x be the arithmetic mean and yz be the geometric mean between two numbers x am y comma z be two geometric means. Y and z, let me read the question. Let x be the arithmetic mean, y comma z be the two geometric mean between any two positive numbers. That y comma z be the geometric means between any two numbers, and then prove that y cube plus z cube by x y z is equal to 2. ये प्रूफ करना है आपको. तो आपको क्या क्या निकालना है? दो ज्योमेट्रिक मीन्स दे रखा है नंबर्स के बीच में. पहले के क्वेश्चन जैसे पहले आपको क्या अज्यूम करना पड़ेगा? नंबर्स को अज्यूम करना पड़ेगा. पेज नंबर सेम है, पेज नंबर है सेम, 20.52 है. तो लेट द नंबर्स बी ए एंड बी. नंबर्स बी स्मॉल है, हमेशा स्मॉल ए और बी लेना. x is equal to a plus b by b. Now let g1 and g2 be geometric means. That is given equal to x y comma z. ये आपको दे रखा है. Now we can find it. Now r निकालने की फॉर्मूला क्या है? r equal to b by इंसर्ट करना मतलब 1 by n plus 1. b by a raised to power 1 by n plus 1. कितना आप डाल रहे हैं? इंसर्ट हाउ मेनी? टू ज्योमेट्रिक मीन्स डाल रहे. दैट इज 1 by 2 plus 1. That is b by a raised to power 1 by 3. Now g1 second term is equal to ar. That is a into b by a raised to power 1 by 3. इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा, let me check, इसका g1 इक्वल टू आपको दे रखा y. g1 इक्वल टू y. g1 इक्वल टू y इक्वल टू a by a into b by a raised to 2 by 3. That is equal to a raised to the 2 by 3, b raised to power 1 by 3. Now z, g2 is equal to ar square. That is a into b by a raised to power 2 by 3
इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा a रेस्ट पावर 1/3 इंटू b रेस्ट पावर 2/3। इसी तरह हमने a और b का वैल्यू निकाल दिया। अब हमको जो पूछा गया उसमें डालना है y³ प्लस z³। क्वेश्चन बड़ा है इसलिए बार बार चेंज करना पड़ेगा। y³ प्लस z³, y³ प्लस z³, y³ इसका क्यूब a रेस्ट पावर 2/3 इंटू b रेस्ट पावर 1/3 होल क्यूब प्लस z³ z is a रेस्ट पावर 1/3 जस्ट उल्टा b रेस्ट पावर 2/3 होल क्यूब। दैट मीन्स a स्क्वायर b प्लस ab स्क्वायर, दैट इज ab इंटू a प्लस b। ab क्या है? ab आपको क्या दे रखा है? क्वेश्चन पढ़िए। x इज द अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b और ab इंटू a प्लस b, बट ab इक्वल टू yz इक्वल टू ab क्यों है? वापस चेक कर लीजिए। yz निकाल दिए, y और z को एक बार लिटिल बी क्वेश्चन नंबर 1, बाद में इसको चेक करते हैं। y और z निकालिए, क्या आएगा? yz मीन्स a रेस्ट पावर 2/3 इंटू b रेस्ट पावर 1/3 इंटू a रेस्ट पावर 1/3 इंटू b रेस्ट पावर 2/3, तो हो जाएगा a रेस्ट पावर 3/3 b रेस्ट पावर 3/3, दैट इज ab। तो ab की जगह पर आप y लिख सकते हैं। a प्लस b क्या है? a प्लस b x इक्वल टू a प्लस b बाई 2 by given condition x is the arithmetic mean between a and b implies a plus b equal to 2. This is equation number 2. Question number 3. By putting 2 and 3 in 1, we get y³ plus z³ is equal to ab की जगह पर क्या लिखोगे आप? ab is yz into 2 implies y³ plus z³ by yz into 2x, सॉरी ये 2x आएगा, सॉरी इसमें देखिए x इक्वल टू a प्लस बी बाई 2, a प्लस बी इक्वल टू 2x आएगा, दिस x इज लेफ्ट। इसलिए मैं करते करते अगर एक आध स्टेप भी छूट गया वापस सारे चेक करने पड़ेगी। तो a प्लस बी इक्वल टू 2x आ गया, दैट इंप्लाइज x प्लस y³ प्लस z³ बाई xyz इक्वल टू 2, दैट यू आर आस्क्ड टू प्रूव। This is also very important question. Now last question of today's class is, इसके बाद हम आज ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, फिर नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है इफ x बी एग्जाम्पल 11 पेज नंबर 20.53, if x belongs to R, find the minimum value of the expression 3 raised to x plus 3 raised to 1 minus x, ये आपको निकालना है। आपको एक कंडीशन है am is greater than gm, ये कंडीशन आपके पास है, that implies 3 raised to x plus 3 raised to 1 by x by 2, that is am greater than or equal to gm is root 3 raised to x into 3 raised to 1 minus x, that implies 3 raised to x plus 3 raised to 1 minus x by 2 is greater than or equal to root 3। देखिए 1 माइनस एक्स और 1 कट जाएगा 3, implies 3 raised to power x plus 3 raised to 1 by x greater than or equal to 2 raised to power root 3, 2 into root 3। तो मिनिमम वैल्यू आपसे पूछा है, और मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू कहां से स्टार्ट होगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 root 3 मीन्स 2 root 3 और से ज्यादा, therefore मिनिमम वैल्यू of 3 raised to power x plus 3 raised to power 1 minus x is 2 root 3. This is also very important. Now one question I orally explaining question number example 10. This is example 11. Example 10, 20.53. If x, y, z are distinct positive numbers, prove that x plus y into y plus z into z plus x are x plus y multiplied by y plus z multiplied by z plus x greater than x y z, 8 x y z। तो आपको इसी में भी ये प्रॉपर्टी लगाना है am ग्रेटर देन gm। मैं सिर्फ स्टार्टिंग बताऊंगी, उसके बाद आपको करना है। एग्जाम्पल 10 में x y z डिस्टिंक्ट नंबर्स दे रखा है, दैट मीन्स x प्लस वाई बाई 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट एक्स वाई यूजिंग द फॉर्मूला am ग्रेटर देन इक्वल टू gm। Similarly, y plus z by 2 greater than or equal to root yz, and last कौन सा है? x y z। थर्ड वन इज x और y हो गया, y और z हो गया, z plus x by 2 greater than or equal to root xz। तीन इक्वेशन आ गया, 1 2 3 by multiplying 1 into
2 into 3. मैंने बोला फिर भी मैं सारे क्वेश्चन कर ही रही हूँ. x plus y into y plus z into z plus x whole upon 8 is equal to root xy into root yz into root xz. अब इसको आप खोलेंगे तो आपको मिलेगा x plus y into y plus z into z plus x. This is greater than or equal to, sorry, बीच में greater than or equal to है, greater than or equal to x सारे कैंसिल हो जाएंगे, 8xyz. That you are asked to prove. This much is sufficient for today's class. That means we have completed chapter sequence and series, that is AM and GM. First AM arithmetic sequence and series. पहले हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीखा, उसके सम nth टर्म, सम टू n टर्म्स, अरिथमेटिक मीन, इंसर्शन ऑफ अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जनरल टर्म और सम टू n टर्म्स एंड इनफाइनाइट जीपी, inserting GM and the relationship between AM and GM, AM greater than GM, and we have done a lot of questions. I hope that you understood all these questions. See you again in the next class with a new topic. Thank you.